किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें हर वर्ग अपने अपने तरीके से आहुति दे रहा है। हर कोई मदद करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए अपने अपने तरीके से यहाँ आ रहा है। पंजाब का जो युवा है वो हर कैटेगरी में, हर वर्ग में यहाँ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात, जो शब्द हैं वो सबसे बड़ा हौसला बढ़ाते हैं, चाहे वो लिखे गए शब्द हैं या फिर बोले गए, और गीत के रूप में पिरो कर उन्हें अगर हौसला दिया जाए तो वो कई गुना बढ़ जाता है। रेशम अनमोल बड़े पंजाब के उम्दा कलाकार हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त। लगातार हम देख रहे थे कि इस धरने पर वो अपनी उपस्थिति तो दर्शा ही रहे हैं, साथ में यहाँ लंगरों के माध्यम से जो सेवा की जा रही है, जो सहयोग किया जा रहा है, उसमें भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। क्या माने, कलाकार खींच के लेके आया है या फिर किसान? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ मोटिवेट कर रहे हैं और ਇੱਥੇ आ के लंगर की सेवा कर रहे हैं। गीतों के माध्यम से अगर बात करें तो इस पे शायद जो मैं सुन रहा था, अभी चर्चा चल रही थी, पहला गीत किसानों के ऊपर आपने, जब ये मूवमेंट शुरू हुई, वो आपने बनाया था, आपने गाया था, तो क्या रिस्पॉन्स आया? उसके बाद किस तरीके से इनक्रेज हुए ये चीज़ें कि नहीं और भी लोग आ रहे हैं, मुझे भी इस तरीके के गाने बनाने चाहिए या फिर इसमें जो है किसानों को समर्पित करने चाहिए? ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਧਰਨਾ। ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਇਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ क्योंकि देश ਨੂੰ ਲੋੜ है ਇਹਨਾਂ ਦੀ जी। तो हरियाणा के कलाकारों का आपने जिक्र किया कि सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि कमी है अब भी। उस तरीके से सहयोग हरियाणा के कलाकारों ने नहीं किया जिस तरीके से पंजाब का हर कलाकार अपने अपने तरीके से निकल करके आया है किसानों के समर्थन में। क्या संदेश देना चाहेंगे कम से कम हरियाणा के कला उद्योग से, हरियाणा के कलाकारों से, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਜ਼ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ 'ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਿਤੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ फिर कलाकार भी मर जाना एक दिन, तो आना चाहिए उन्होंने। किसान की ही बात नहीं है, ये हर वर्ग से जुड़ी हुई लड़ाई है, चाहे उसमें आप हैं, मैं भी हूँ, या फिर मेरा जो ये वीडियो देखने वाला जो भी इंसान है वो भी होगा। तो अभी हाल में कोई ऐसा सॉन्ग आपका आया हो जो इस आंदोलन से जुड़ा हो या फिर इन मुद्दों से जुड़ा हो? हाँ जी, मेरे दो गाने रिलीज़ होए आ। एक 2 महीने पहला होया सीगा धरना सॉन्ग, वो धरने के उत्ते ही है। मैं चाहांगा 2 लाइनां ओहदियां सुना देवां मैं। पुत्तां वांगू पाल के फसल नहीं हो विकदी, रोल तां किसान साली हजे भी ना टिकदी, बह के एसियां च दावे बस करदी, कहंदे छड्डो किसानों फाह लैके मरना, हक मिलदा नहीं जिन्ना चिर जिमीदारां नूं लगू दिल्ली बार्डर उत्ते एवें धरना। धरना सॉन्ग मैं रिलीज़ किया सी 2 महीने पहला, काफ़ी रिस्पॉन्स उन्होंने मिलिया। और हुण एक 2% गाना वो लंगर ते है, वो रिलीज़ किया है। जिहड़ा गुरु नानक देव जी का मैसेज है वो अज पूरा हरियाणा फॉलो कर रहा। मेरे को शब्द नहीं है, मैं किदां थैंक्स करा गौरमेंट का
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ चांस तो क्रिएट हुआ कम से ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1966 ਚ ਵਿਛੜੇ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 2020 ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, है ना। बीच में आपने हरियाणा और पंजाब का जिक्र किया, मैं कम से कम आपका अनुभव जानना चाहता था। अब जब ये इकट्ठा बैठे हरियाणा और पंजाब के लोग, उससे पहले क्या नज़रिया था हरियाणा को लेकर के कम से कम? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲੜੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਓਮ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਵਨ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੈ, ਲੜੋ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਲੀਡਰ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ, ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਕਸਮ ਖਾਓ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ जी, एक वो जो अभी हाल ही में गाना आया था उसका जिक्र हम कर रहे थे, उसके बीच में कोई बात और निकल गई थी। ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ 2%, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2% ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100% ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਓ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਟਲ ਇਜ਼ 2%, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਵੇਖ ਅੰਨੀਏ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ 2% ਹੀ ਨੇ 100% ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ 2% ਹੀ ਨੇ 100% ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ। जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, सवाल नहीं बल्कि एक आपसे गुजारिश है, उन तमाम युवाओं को जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं मानते हैं एक आदर्श के रूप में, उन्हें कोई संदेश देना चाहें इस हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से? मैं इस लायक नहीं हूँ किसी को है कोई कि मैं किसी का ड्रीम बनूं या मुझे फॉलो करे। बस मैं एक बेनती करता हूँ सबसे कि हम एक हैं, एक बन के रहें। और जब भी आपको लगे कि कहीं पे गलत हो रहा है तो प्लीज़ उसका विरोध करें, अगर नहीं करना तो कम से कम चुप रहें, गलत की सपोर्ट मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुछ और साथी भी हमारे साथ में हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से। तो कब यहाँ आए आप? ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 27 ਘੰਟੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੱਲ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। कब आप चले थे और कब यहाँ पहुँचे? सर मैं 3 दिन पहले चला था और मुझे 28 आवर्स लगे यहाँ पहुँचने में, कंटिन्यूसली ड्राइव करी बाई रोड आप आए हैं? बाय रोड। जी जी। तो इधर आ एक्चुअली बेसिक तो हम यहीं से ही हैं, हरियाणा से। और भाई से जैसे बात होती रहती है मेरी, भाई से मैंने पूछा मैं क्या चल रहा है, तो भाई ने बताया अभी सरकार नहीं मान रही। तो आज टाइम है जब मतलब जो जिनका अन्न हम खा रहे हैं, जिन किसानों की वजह से आज हमें अन्न मिलता है, नसीब होता है, तो आज उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर मैं नहीं मानता कि भी इस देश में हमें जीने का भी हक है।
मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुंबई बैठ करके आंदोलन को आप देख रहे थे तस्वीरों के माध्यम से, क्या लग रहा था, कैसा नज़रिया बन रहा था कि सच में ही क्या होगा? वहाँ बैठ करके यहाँ आने के बाद जो बदलाव आपने देखा उसमें कितना फ़र्क पाया? देखो, वहाँ पे नेशनल जो चैनल हैं, वहाँ जो मीडिया शो कर रहा है, मतलब आज का जो मीडिया है वो सब कुछ मोदी के हाथ बिका हुआ है। तो जैसा मोदी जी चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। अब न्यूज़ चैनल में जो दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भाईचारा देखने के लिए मिल रहा है, आप आके देखिए, वो भाईचारा शायद ही आपको दुनिया में देखने को मिले। और जो प्यार हरियाणा और पंजाब का भाईचारा यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, किसान एकता जिंदाबाद। और जो भी भाई हमारे यहाँ नहीं आ सकते वो सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, और जो भाई आ सकते हैं वो ज़रूर आएँ। तो कुछ कोई आतंकवादी भी मिला, खालिस्तानी मिला, जैसा मीडिया में बताया गया था? आपने पूरा घूम के देखा होगा। सर, खालिस्तानी तो कोई भी नहीं मिला। अब सरकार अगर ऐसे नहीं करेगी, आंदोलन बदनाम कैसे होगा? और आप कभी भी देख लो, कुछ बड़ा होने जाता है जब भी देश में, या तो कश्मीर में बम फट जाते हैं या पाकिस्तान हमारे खिलाफ कुछ कर देता है। ये तो शुरू से मोदी जी की राजनीति रही है और अमित शाह को इसी काम के लिए बैठाया है। तो वो जब तक ऐसी दोगली बातें नहीं करेंगे तब तक उनका बेचारों को रोटी नसीब कैसे होगी। तो अनुभव पॉजिटिव रहा आपका यहाँ आकर? यहाँ के जी हमें तो मालूम था, लेकिन जो वहाँ की मीडिया शो कर रही थी, मैं तो वहाँ की मीडिया का बता रहा हूँ आपको, जो नेशनल चैनल हैं वो दिखाते कुछ और हैं और एक्चुअली सच्चाई कुछ और है। मीडिया की चीज़ें देख करके वहाँ जो लोग हैं जिनको नहीं पता था, मान लो कि आप तो टच में थे किसी के तरीके से व्यक्तिगत, उनका प्रोफेक्शन कुछ बन रहा है कि नहीं? वो भी नहीं मानते कि नहीं यार, किसान तो ऐसा नहीं कर सकते कम से कम? नहीं, पूरी दुनिया मान, पब्लिक रिएक्शन क्या है? पूरी दुनिया सपोर्ट में है। लेकिन वही बात है, जो किसान पुत्र नहीं है वो सोचते हैं हमें तो सब कुछ मिल ही रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता अगर ये किसान फार्मिंग करेंगे ही नहीं। ये नहीं जानकारी अभी तक कि वो खेत से पैदा होती है, ना कि किसी स्टोर से। जब यही अगर रोड पे सोएंगे तो इनको खाना कहाँ से नसीब होगा? अडानी थोड़ी खिलाएगा इनको, ना अंबानी खिलाएगा, ना अडानी खिलाएगा। खिलाएंगे तो ये किसान खिलाएंगे। जी बीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये मोदी सरकार ने कहा था अच्छे दिन लेके आएंगे। मैं उनके ऊपर एक कविता लिखी है, एक लॉकडाउन होया कम बंद आ, उत्तों साल ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਮਾੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘੇ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਲਿਆ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। जी जी, बहुत बढ़िया सर। जी आप? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਡੀਆ का ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਖਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਹਜ਼ੂਮ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਜ਼ੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖਿਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 26 27 28 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਹਜ਼ੂਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ੂਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੂਲਾ ਚੀਕਾ, ਕੈਥਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ
ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕੱਠ ਟੁੱਟ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ होएगा। उम्मीद करते हैं सर कि मोदी जी माने और ये कानून है वापस हो। कुछ और साथी भी हमारे साथ हैं। जी धनखड़ साहब, क्या माना जाए, मोदी जी मान जाएंगे जैसे सरदार जी कह रहे थे अभी? देखिए कुंडू साहब, ये लड़ाई बड़ी लंबी है। सरकार अपने आड़े टेढ़े हथकंडे अपना रही है ताकि आंदोलन का जो मेन मोटिव है उसको डाइवर्ट किया जाए। लोगों को यहाँ पर भड़काया जा रहा है, बाहर लोगों को भड़काया जा रहा है ताकि जो किसानों के प्रति पूरे देश में एक जन सैलाब खड़ा हुआ है, जो सहानुभूति लोगों के प्रति हमदर्दी है, उसको तोड़ा जाए। लेकिन जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, लोग समझते हैं मोदी जी को, बीजेपी की नीतियों को समझ रहे हैं। सरकार को अब की बार झुकना ही पड़ेगा किसानों के आगे। किसानों के इन 3 डेथ वारंट को, काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि किसान ही एक सबसे बड़ा अन्नदाता है जो पूरी आवाम को रोटी खिलाता है, इस देश को चलाता है, पैसे को पैदा करता है। जब देश में पैसा ही नहीं होगा, देश में अनाज ही नहीं होगा, तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा। अगर सरकार ना माने, बातचीत से नहीं मानी है, अब तक जो प्रोसेस चल रहा था वो ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे किसानों के पास विकल्प क्या, किसान क्या करेंगे? कि विकल्प तो एक ही है, आंदोलन जारी रहेगा। और जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भी किसानों ने आंदोलन किए हैं। चौधरी छोटू राम जी ने किसानों के लिए बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। वे आज नहीं है, वे स्वर्ग में हैं। लेकिन हमें भी चौधरी छोटू राम, चौधरी देवीलाल बनकर किसानों के साथ उनसे कंधा कंधा मिलाकर आंदोलन में तेजी लानी पड़ेगी। मोदी सरकार क्यों नहीं मानेगी? जब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा तो फिर सरकार से हाथ धोने पड़ेंगे। छोटू राम का जिक्र आया ताऊ जी, छोटू राम का नाती है वीरेंद्र सिंह, अपने बेटे को बना रखा है सांसद। आप बोल रहा है कि नहीं मैं तो किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, बेटा इस्तीफा दे वो ना दे, बेटे से पूछो। बिल्कुल नहीं लड़ता, वो नहीं किसानों के बारे में लड़ता। अच्छा। हाँ, वो नहीं लड़ता। जो तक लड़ाई किसानी नहीं लड़नी पड़ेगी, नहीं लड़ते हैं ना तो मोदी के चमचे हैं बस क्या इतने। लग रहा है बकाने के लिए आया वीरेंद्र सिंह? हाँ, बकाने के लिए, नहीं तो हो सकता है दिमाग में कई बार होता है कि नहीं यार हमारे अपने हैं किसान, इनकी लड़ ले, राजपाट छोड़ो। इनकी बातें मन जाते ने किसान ने बोला किसानों ने साहब ने नाल जाना उड़ देनिया ने कदों बस आर पार का काम। हाँ जी, जब कांग्रेस सरकार रही है 10 साल हरियाणा प्रदेश में भी, सेंटर में भी, तब वीरेंद्र सिंह जी मंत्री थे केंद्र में। तब 2 साल ही मेरे ख्याल से सरकार को हुए थे, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी। अगर ये इतने ही किसान हिमायती होते, हितैषी होते, तो 8 साल काफ़ी समय होता है एक रिपोर्ट को लागू करवाने में, जिससे ज़मीनी स्तर पर वाकई में किसान का भला हो सके। लेकिन उन्होंने तब कुछ नहीं किया। पिछले 5 साल भी मोदी गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं, तब भी कोई किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखो वीरेंद्र सिंह हमारे बेसिकली, मोदी जी की सरकार में तो एक काम उन्होंने किया था, जाटों का समझौता जरूर करवाया था। देखो वो समझौता मंत्री ही है, वो हमेशा जाटों को मुद्दे से बरगलाते हैं। जब भी सरकार और किसान के बीच, सरकार और जाट के बीच हमेशा तनी है, वीरेंद्र सिंह ने हमेशा सरकार का पक्ष लेकर जाटों को डिमोरलाइज किया है, उनका हौसला हमेशा तोड़ा है। समर्थन करते हैं वह सरकार का, लेकिन दिखावा करते किसानों की ओर। वो बेसिकली राज के साथ ही होते हैं, किसानों के साथ नहीं होते। जी, आज भी वीरेंद्र सिंह जी वही कर रहे हैं, बेटे MP हैं हिसार से, लेकिन वो आज किसानों को बरगला रहे हैं कि मैं आपके सवाल से बचते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि बेटा का इस्तीफे का क्या, कह रहा वो तो बेटा ही बताएगा, मैं नहीं जानता। वो देखिए, आप जब एक परिवार में हैं, बेटा पुत्र जब एक परिवार में होता है, तो दोनों ही एक सामूहिक जिम्मेवारी, कलेक्टिव उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या तो आप किसान के साथ हो या आप सरकार के साथ हो। आप खामखा दिखावा कर रहे हैं सरकार के साथ होने का, किसान के साथ होने का। वीरेंद्र सिंह को अगर सच्चे ही छोटू राम जी के दोते हैं, छोटू राम जी के वारिस हैं, उन्हें अब किसानों के सच में फ़ायदे के लिए किसानों के भरोसा जीतना पड़ेगा। सबसे पहले उनके भरोसा कायम करो, तब जाके किसान आप पर विश्वास करेंगे, वरना किसान अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को कतई विश्वास नहीं करेंगे। जी, आप कुछ कहना? वीरेंद्र सिंह पन्नी जी
ये तो देवी लाल के नाम पर चटाला परिवार जमी खत्म हो गया, इसको तो कोई पूछने का ना बढ़ने देगा। इसको तो देवी लाल के नाम पर वोटियां से किन्नू इसको दुष्यंत को दुष्यंत चटाले नू आबे नू अजय नू सारे नू अब तो हम बढ़ने भी नहीं देंगे। अबे तो ठीक बता रहे थे कि कहाँ ठीक है। हाँ हम तो कहते भाई इस आंदोलन वाले में तो ठीक ठाक खड़ा है। ना बिल्कुल नहीं ना, सब अपना वो भी इसी तरीके से। इसी तरीके से इन्हों तो कोई गाँव भी नहीं बढ़न देने का। हम पक्के वर्कर थे, हम तो गाँव भी नहीं बढ़न देने के। और जो किया होगा इनके साथ उसको भी लठ लग जाएगा। अब कौन लड़ाई लड़ रहा है इनकी जगह फिर? हम लड़ रहे हैं अपनी अपनी लड़ाई, खुद लड़ रहे हैं। हुड्डा साहब, हुड्डा साहब का मानो नहीं पता लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, हम किसी के राजनीति में नहीं है। हम देवीलाल वालों का, हुड्डा साहब तो हाँ जी, देवीलाल वालों का पता है, हुड्डा साहब की अभी जानकारी नहीं कि लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हाँ हमारे को मालूम नहीं है। हाँ हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद इस मामले में है कि देखिए यह आंदोलन भारत के जन आंदोलन बन चुका है। रहा सवाल, ये आंदोलन चला पंजाब से। पंजाब हमेशा जो है, पंजाब का इतिहास रहा है कि जब ब्रिटिश हुकूमत में भी पंजाब में भगत सिंह के पिताजी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए किसानों के आवाज़ को उठाने के लिए पंजाब का नेतृत्व रहा, जिसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। और रहा सवाल ये कि ये सरकार के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधि हैं, तो ये 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधि नहीं है। रहा सवाल इस बात का कि प्रधानमंत्री सरकार यह नहीं कह सकती है कि कौन, सरकार तो कुछ भी कह रही है अपनी दुकान चलाने के लिए। आप कहाँ से आए? हम उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से आए हैं। बलिया से हैं, तो किसान हैं आप जी। तो कब से इस आंदोलन में है यहाँ? ये आंदोलन जब से, हम लोग पहले थे गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन 1-2 दिन से हम लोग सिंधु बॉर्डर पर आए हुए हैं, देख रहे हैं कि यहाँ कैसी क्या स्थिति है, क्या चल रहा है। तो योगी जी के राम राज्य से आप आए हैं, वहाँ तो फिर मेरे ख्याल से राम राज्य स्थापित हो गया होगा, अब तक तो दिक्कत बची नहीं होगी। रहा सवाल राम राज्य का, तो राम जो थे, राम राज्य, राम को पुरुषोत्तम राम कहा जाता था, पुरुषोत्तम राम। तो राम के राज्य में संताप नहीं था। लेकिन आपसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जिस टीवी के माध्यम से आप हैं, तो आप जाएंगे तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ हर तरफ संताप दिखाई दे रहा है। ये राम राज्य की परिभाषा को परिभाषित नहीं कर रहा है। राम मंदिर की घोषणा होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा? राम मंदिर है, मंदिर तो मंदिर है, सबका मंदिर है। मंदिर से किसानों का क्या लेना? मंदिर वर्षों से मुद्दों को भूलकर आप जैसे और जो जितने भी लोग हैं वो राम मंदिर की ही तो लड़ाई लड़ रहे थे। मुद्दे तो दिखे नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहा था। तो राम मंदिर वो तो बन ही रहा है, फिर मुद्दों की जरूरत क्या पड़ी? क्यों? अब तो घोषणा हो गई है, कोर्ट ने फैसला दे दिया है, नींव पे नारियल फोड़ दिया है। मेरे ख्याल से मुद्दों की तो फिर जरूरत बची नहीं होगी। अब तो कोई मुद्दा रह नहीं गया है। तो जहाँ तक आप राम राज्य की बात करते हैं, राम मंदिर बनाने से राम राज्य की कल्पना नहीं न की जा सकती है। मंदिर के प्रति सबकी आस्था है। इसके माध्यम से यही तो कहना चाहता था, आपको यही पूछना चाह रहा था, यही लाना चाह रहा था। तो फिर मुद्दों के लिए आज जो लड़ रहे हो, पहले क्यों नहीं लड़े? पहले मंदिर और मस्जिद के लिए क्यों लड़े? अब याद आता है कि नहीं आता है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे थे? नहीं, कहने का मतलब ये कि ये थोड़े है कि मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, क्या उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर लोग जो है मोदी योगी के अनुयायी हो गया है? ऐसी बात नहीं है। बताया तो ऐसा ही दिखा जाता है, दिखाया भी ऐसा ही जाता है। वो दिखाया जाता है, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि गोदी मीडिया क्या क्या दिखा रही है। गोदी मीडिया जो दिखा रही है, क्या अच्छी बात दिखा रही है क्या? ऐसी बात नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं जो मोदी जी, योगी जी के पूरा जो है अनुयायी हो गए हैं। ये ऐसी बात नहीं है। लोग तंग हैं वहाँ भी।
ये किसानों की लड़ाई राष्ट्र की लड़ाई है। देश के कमजोर करने के लिए एक तीनों काला कानून लाया गया है। इस पर पूरा भारत एक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो कितना किसान उत्तर प्रदेश से उठ करके आया है? आज माना जाए तो दिल्ली के आसपास, दिल्ली के चारों तरफ, गाजीपुर बॉर्डर पर आप जाकर के स्थिति को देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने किसान वहाँ आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये किसान है, उससे पहले कलाकार थे। कलाकार और किसान एक ही तरीके से एक ही साथ मंच साझा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं। सरकार से तो जता ही रहे हैं, आपसे भी उम्मीद जता रहे हैं कि आप उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और उस आवाज़ को मिला करके फिर दिल्ली की सत्ता सुने और इनके जो कानून है, 3 कानून जिनको लगातार किसान काला कानून का नाम दे रहे हैं, वो वापस हो जाए और किसान अपने घरों की तरफ वापस जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली।